PC and DPTR. What is a PC and what is DPTR? This is a PC and DPTR. Everyone can see. I think everyone can see. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So these are the program counter and DPTR. These are the two 16-bit register. PC is nothing but a stand for program counter, which are used in already I am described. The next instruction to be executed, the address of the instruction stored into the PC. That is the function of program counter. I am already described. Means, say I'm whenever I'm asking a question, so in a roll number 1. My mind is already point out in the next roll number, that is roll number 2. So it is a pointed by default, but I'm asking the questions is roll number 1. So that is a totally difference. Means whenever any instruction is executed, the next instruction to be executed, that is stored into the PC. That is actually function of the program counter. Next, DPTR is consist of two already I am described you, DPH and DPL together is called DPTR register. DPTR register is used mainly for the basically to point any memory locations, means any external memory locations, of 16-bit, right? Is it clear? So now I will be explaining PSW. So what is the PSW? First I will be explain you PSW. PSW is full form program status what? You should be write down this one is a very important one. I'm just shown to you. This block you should be write down first. This block. From 0 to 7, this is the 8-bit register PSW, and this is the name of internal. What is the if I'm talking about the register, but it is a special functions. So what does it mean? It have some different function. It have some different functions. That's why it's called special function registers. That's why it's a special function register. Is it clear? It's clear to everyone? Yes, sir. So, whenever we are talking about the related to the PSW is just like a flag register. Flag register means if I'm assuming in your college there are the name of the faculty members. Beside the name of the faculty members, there is a option of in and out, means whether he is a present in the college or not present in the college. So with the help of this board, you can know the status of the college. Today which faculty is present, today which faculty is not present. So that is the in out functions, but you cannot know whether this faculty is available in the which classroom or which building. You cannot know. Means every data you cannot know from that particular seat, only you know the status. Means status means whether this faculty is present in the college, whether not present in the college. That's it. Is it clear? Yes, sir. Similarly, if I'm talking about the two numbers additions in a hexadecimal, which I already described, like AB plus CD. If I'm talking about the AB plus CD, what will be happen in AB plus CD? It's a very important one. Which one is AB plus CD? If I'm adding these two, B plus D, how much it is? B means how much? What do you mean by B? What do you mean by 11. A? 11, sir. B means 11 and D means 13. together? Together? 24? 13 plus 11 कितना होता है?
24 24 से कितना कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमको? बोलो 16, मैंने पहला दिन बताया था. So it will be result is 8. So 16 means 16 into how much? 1. So 1 coming here as a carry. So now is coming into the AC, full form auxiliary carry flag. Full form auxiliary carry flag. If carry generated in lower nibble, NIBBLE, that will be passes into the higher nibble, then auxiliary carry flag will be set. If carry generated in lower nibble, that will be passes into the higher nibble, then auxiliary carry flag will be set. Definition is clear to everyone? मतलब लास्ट डिजिट जोड़ के कैरी आने से ही ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग मतलब एसी फ्लैग विल बी सेट टू 1. इज इट क्लियर? समझ No, में आया sir. कि नहीं आया? बोलो. नहीं आया तो बोलो. No, sir. This I am No, talking sir. about the AC only. सर नहीं आया समझ में सर. देखो इन दोनों नंबर जोड़ के कितना आया था? बी एंड डी 24 है 24. कितना सब्ट्रैक्ट किया? 16 16. कितना रिजल्ट आया? 8. 8 8 मैंने इधर पुट कर दिया. yes 16 सब्ट्रैक्ट किया मतलब 16 टू हाउ मच? 1 16 into how much? 1 1. This one coming here as a carry, right? So carry generated in lower nibble, that will be passes into the higher nibble. NIBBLE, 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 called nibble. Carry generated in lower nibble, that will be passes into the higher nibble, then auxiliary carry flag will be set. Is it clear? Is it clear? यस सर. मतलब ए डिजिट ऐड करके कैरी आने से ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है. अरे नहीं आएगा तो क्या होगा? नहीं सेट होगा, 0 ही रह जाएगा. हम बोलो क्या क्वेश्चन है? बोलो. सर कैरी को होल्ड करता है सर. हैं? रजिस्टर सर जो कैरी आया उसको होल्ड करेगा. कैरी ए कैरी नहीं है, ऑक्सिलरी कैरी है. हाँ सर तो जो स्पेशल ये जो फ्लैग रजिस्टर है सर वो होल्ड करके रखेगा ना सर. हाँ ये होल्ड करके रहेगा नेक्स्ट कोई अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होने से पहले से. इधर डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट लिखा है मैंने, उसका भी डिफरेंस डेफिनेशन हम बता रहा हूँ. ये तो तुम लोगों को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखा. So carry is generated in lower nibble, that will be passes into the higher nibble, then auxiliary carry flag will be set. कोई भी फ्लैग सेट होना और रीसेट होना होगा जब कोई अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होगा, उसी के बाद वो फ्लैग बीट जो है, जो सारा का सारा फ्लैग बीट है, वो चेंजेस आएगा, वो सेट और रीसेट होगा. अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस छोड़ के फ्लैग का उतना फंक्शंस नहीं है. ये फ्लैग रजिस्टर से हम लोग को पता चलता है जो पिछला बार हम लोग एडिशंस किया उसमें कोई कैरी आया कि नहीं, उसमें कोई बोरो आया कि नहीं, उसमें क्या कैसे हुआ एडिशंस, इसके लिए हम लोगों को कैरी फ्लैग जरूरत पड़ता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर सर वो लोअर निबल और हायर निबल क्या है सर? एज इसको बोलते हैं लोअर निबल, इसको बोलते हैं हायर निबल.
मतलब लोअर डिजिट को लोअर निबिल बोलते हैं, हायर निबिल को हायर डिजिट बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय निबिल? जानते हो तुम लोग व्हाट डू यू मीन बाय निबिल? 4 bit, हाँ 4 bit को बोलते हैं। 4 बिट, वेरी गुड. 4 बिट को बोलता है निबिल. एग्जैक्टली. सर बाइनरी में कन्वर्ट करो, ए बी को क्या आएगा? 10101011 आएगा? आएगा कि नहीं? 10101011 ए बी. Yes, sir. CD कैसा आएगा? 11001101. Right? Is it clear? It's clear to all of you? Yes. Yes, sir. This is D0, this is D1, this is D2, this is D3, this is D4. This is D5, this is D6, this is D7. Okay? So what is the D0? 1 1 0 carry 1, sorry, 0 carry 1, again 0, again 1 carry 1. So if carry generated in D3 bit or bit 4, D0, D1, D2, D3 means a 1 2 3 4, मतलब bit 4 में carry आएगा, then auxiliary carry flag will be set, then AC flag will be set. We can say like that, or we can say carry generated in lower nibble. Nibble means ये 4 bit को बोलता है total मिला के. Carry generated in lower nibble, that will be passed into the higher nibble, then auxiliary carry flag will be set. On the other hand, it can be say carry generated in which bit? D3 bit, and it will be, you know, carry generated in D3 bit, that will be passes into the D4 bit, then auxiliary carry flag will be set. Is it clear? It's clear or not? Yes, sir. समझ No, में sir. नहीं आया तो बोलो. हाँ? So next is AC. AC is done. So AC is 1 over here, right? Next is CY. Just add the next one. What is the A means? 10. 10, C 10. means 12, 12. टोटल मिला के कितना हो रहा है? 20, 23, क्योंकि ऊपर में कैरी है कहना. Yes, sir. 23 minus 16 कितना आएगा? 7, 7. 16 means 16 to how much? 1. 1 coming here as a carry, so it is put it over here. So this one is called carry. This one is called carry. So if carry generated in any arithmetical logical operations, then carry flag will be set. If carry generated in any arithmetical logical operations, then carry flag will be set. If carry generated in any arithmetical or logical operations, then carry flag will be set. Is it clear? It's clear to all of you? Yes, sir. Carry generated in any arithmetical logical operations, then carry flag will be set. It's clear? So it's carry generated, then carry flag is set. Next, if at the time of subtraction there is a borrow, you know? What do you mean by borrow? What do you mean by borrow? So udhar. Yes.
जब मान के चलो कोई बड़ा नंबर कोई छोटा नंबर से सब्सट्रैक्ट करोगे तब बोरो आता है, राइट? लाइक आई एम सब्सट्रैक्टिंग 55 से 72, तो क्या बोरो नहीं आएगा? आएगा सर नेगेटिव में। तो बोरो आएगा तब भी कैरी फ्लैग सेट होता है, तब भी कैरी फ्लैग सेट होता है। तो कैरी फ्लैग सेट होता है दोनों टाइम में, एक कैरी जनरेट होने से और बोरो जनरेट होने से। कैरी जनरेट होने से और बोरो जनरेट होने से कैरी फ्लैग सेट होता है। ये है कैरी फ्लैग, राइट? बिट नंबर 7। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सर एक्चुअली रजिस्टर का क्या काम बोला? मैंने पहला दिन बताया था, क्या काम है रजिस्टर का? जैसे तुम्हारा वर्ड ड्रॉप है, क्या काम है इनका? बोलो। द डेटा, बोलो, टेम्पोररी स्टोर इन द रजिस्टर। द डेटा टेम्पोररी स्टोर इन द रजिस्टर, मैंने सामने कभी यूज्ड होगा इसके सोच के तुम डेटा टेम्पोररीली तुम ये रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो Yes, sir. रजिस्टर में टेम्पोररी डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को रजिस्टर दिया गया है, इसीलिए हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। तो रजिस्टर हो सकता है कितना बिट का? 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। मगर F0 is a 1 bit register. 1 bit register. 1 bit register. Here you can store only single bit. मतलब तुम 0 स्टोर कर सकते हो और 1 स्टोर कर सकते हो, इसके सिवा कुछ भी नहीं स्टोर कर सकते हो। 0 और 1, you can store only 0 or 1 you can store. You cannot store any other data into the F0. Okay? It's clear all of you? Yes, sir. Yes, sir. Next, sir, how many bank is there? How many bank? कितना बैंक है? मैंने बोला था इंटरनल रैम पढ़ाने का टाइम। बोलो। Sir, three बोलो। bank. 3 बैंक? नो सर। Sir, one bank. नो सर। 4 banks, sir. 4 बैंक। Sir, वेरी गुड। sir, 4 bank, बैंक नंबर 3 तक गए थे हम लोग। बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, देखो 4 बैंक। मैंने ये डायग्राम तुम लोगों को समझाया था, 4 बैंक। अभी मान के चलो ये बैंक कैसे सिलेक्शंस होगा, कौन सा बैंक कब काम करेगा, कौन सिलेक्शन करेगा, वो डिसाइड करेगा इन दोनों बीट RS0 एंड RS1 कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा। ये RS0 एंड RS1 इन दोनों के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा बैंक सिलेक्शन होगा। जैसे 0-0 होगा तो बैंक 0, 0-1 होगा तो बैंक 1, 1-0 होगा तो बैंक 2 एंड 1-1 होगा तो बैंक 3। Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो RS0 एंड RS1 जो बैंक सिलेक्शन करता है, इसमें तुम जो दोगे उसी के हिसाब से बैंक सिलेक्शन होगा। कौन सा बीट में है? PSW.3 में है, PSW.4 में है, 3 नंबर बीट में है, 4 नंबर बीट में है। इसको याद रखना पड़ेगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PSW.3 एंड PSW.4 मींस 3 नंबर में है RS0, 4 नंबर में है RS1। ये याद रखना, ये प्रोग्रामिंग करने का टाइम में अभी भी काम में आएगा। तो RS0 में और RS1 के ऊपर बेस करके कौन सा बैंक सिलेक्शन हो रहा है वो डिसाइड होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इज Yes. ओवरफ्लो, OV। Full form is overflow flag. Full form is overflow flag. Full form is overflow flag. एक बार देख लेते हैं। ये है बैंक सिलेक्शंस। You can see my screen. Yes, sir. देखो RS0, RS1
This is the function of bank 0, bank 1. Okay. Next is overflow कौन flag. वाला देखे यार? हैं? बोलो। नहीं दिख रहा। RS0 RS1 क्या देख रहे हैं स्क्रीन में? प्रोग्राम काउंटर एंड डाटा पॉइंटर ही दिख रहा है सर। सर में ही है फिर से क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं। Now you can see. Yes, sir. दिख रहा है। सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। RS0 RS1. This is a selection of bank. Which bank you are selecting? Now is the overflow flag. What is the functions of overflow? It's also very important. Overflow flag. Overflow flag. If your result greater than the 7 bit, if your result greater than the 7 bit, then overflow flag will be set. Actually, overflow flag is very important for sign magnitude number system. What does it mean? मान के चलो, you have a 7F. What is the binary combinations? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, right? This is a 7F. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes, sir. यस सर। तो 7F के साथ मान के चलो एक हम जोड़े हैं 7F plus 1 क्या होगा? 15 plus 1 is 16. 16 means 16 minus 16 is 0. Then it is a 8. So it will be 80. 7F plus 1 is 80. If I am binary combinations of this one 1 0 0 0 0 0 0 0. Sir, you know what is the meaning of this 0 in sign magnitude number system? पॉजिटिव। Positive number, very good. In sign magnitude number system, if MSB bit, this is called MSB bit, most significant bit. If MSB bit is 0, that indicate the number is positive. Number is positive. If it is a 1, then it's represent, it's a negative number. Okay. So whenever result is greater than the 7 bit, then overflow flag will be set. Overflow flag will be 1. Result 7 bit से ज्यादा होने से overflow flag will be set to 1. Okay? Is it clear? Sir, repeat, sir. रिजल्ट देखो ये 7 बिट का 7 बिट था 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट का था 7F मतलब अभी हो गया क्या 8 बिट का रिजल्ट 80 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जब रिजल्ट 7 बिट से ज्यादा हो जाएगा मतलब 8 बिट हो जाएगा तब ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा। रिजल्ट जब 7 बिट से लेकर 8 बिट हो जाएगा तब ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा। क्या इसका मकसद है? क्योंकि नहीं तो नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है। 7 बिट तक पॉजिटिव नंबर रहता है, उसके बाद 8 बिट में नंबर नेगेटिव हो जाता है क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब 0 होगा तो पॉजिटिव। इन साइन मैग्नीट्यूड नंबर सिस्टम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, देन इट्स कॉल्ड नेगेटिव नंबर। इट्स क्लियर? It's clear to all of you? Yes, sir. So that is the function of overflow flag. And the next, or that is the last, that is the P. Parity bit. P is called parity bit. Sir, what are the result after the additions? What are the result after these additions? बोलो 170 बोलो सुनाई नहीं दिया 178. 178. Remember 1 is not a result, it's a carry. 78 is your result. 78 is your result, right? Is it clear? It's clear to you? Yes, sir. So how many ones are in 78 is binary conversions 0 1 1 1 1 0 0 0. This is the binary form of 78. Am I right?
Is it clear? Yes. So how many ones, sir? 4. 4. So number is 4. This is odd or even? Even. 4 number Even. is odd or even? Even, sir. Even. Even, sir. If it's a odd, then it will be set. If it's a even, then it's a reset. This is 0. Okay. If the number of 1 in any result is odd number of 1, then parity flag will be set. If even number of 1, then parity flag will be reset. Is it clear? Sir, एक बार फिर से. If after arithmetical logical operation, if the result have odd number of 1, then parity flag will be set. Otherwise, parity flag will be reset. Otherwise, parity flag will be reset. Is it clear? Yes, sir. So this is the parity flag. So it is a very important PSW. I complete the PSW register. So next we will be discuss some program. This one. क्या questions किए हैं sir? Show the status of, you can see my screen. Problem number 1. Yes, sir. Sir, what are the questions? Show the status of carry flag, auxiliary carry flag, parity flag after the addition of 38 and 12. Forget about the instructions. Tell me. Forget about the instruction. 38 plus 12 करने से कौन सा फ्लैग सेट होगा? कैरी फ्लैग सेट होगा क्या? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा क्या? तुम्हारा पैरिटी फ्लैग सेट होगा? वो तुमको बोलना है. तो क्या करना है? 38 को प्लस करेंगे 2f से. प्लस 2f से. वेरी गुड. तो 8 प्लस 8 कितना होगा? बोलो. 15 प्लस 8 कितना होता है? 23. हैं? 23. कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे सर? How much subtract? 16. 16. Very good. Result is 7. Okay. 16 subtract किया इसलिए 1. So 3 plus 2 plus 1, that is 6. Okay. Is it clear or not? Yes. So carry flag क्या होगा सर? बोलो. ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा? बोलो. पैरिटी फ्लैग क्या होगा? बोलो. पहले कैरी फ्लैग बताओ. बोलो. सर कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा. कैसे सेट हो जाएगा सर? 1 कैरी में आया है ना. कैरी कैरी 1 है सर. कैसे कैरी 1 है? कोई कैसे कैरी 1 है? इधर कैरी आया है. 67 आया है. 2 डिजिट का नंबर एडिशन किया, 2 डिजिट ही आया है. नहीं आया सर. कैरी नहीं आया मतलब कैरी फ्लैग विल बी रीसेट. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. देखो इधर कैरी फ्लैग सेट हुआ था, इधर कैरी फ्लैग सेट हुआ था क्योंकि AB प्लस CD करके हमको इधर 178 आया था. 3 डिजिट आ गया था. एक 1 आ गया था जो है कैरी, इसीलिए कैरी फ्लैग सेट हुआ था. मगर इधर तो कुछ नहीं आया. इधर तो कुछ नहीं आया. सर ऊपर वाला को कैरी नहीं बोलेंगे. है? ऊपर में जो एक ये कैरी वाला? आया सर उसको 16 into 8 1 प्लस वाला F करके इसके लिए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इफेक्ट करता है, नॉट कैरी फ्लैग. कैरी फ्लैग इधर में आने से होता है. ओके.
तो Yes, sir. तुम लोग अभी देखो ये दोनों नंबर ऐड करके कैरी आया है लोअर निबल ऐड करके कैरी जनरेटेड इन लोअर निबल Yes, sir. तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा राइट इट्स क्लियर समझ में आया कि नहीं आया बोलो Yes, sir. next 67 convert into the binary 0 1 1 0 0 1 1 1 right how many ones Sir, odd होगा इसमें 0. कितना नंबर है सर Five. 5 ऑड है ऑड होने से क्या होता है Odd होने से 1. ऑड Set. होने से Set होगा. सेट होगा Set हो जाएगा सर 1 होगा. Set is it one clear होगा. problem Yes, sir. number 1 is clear to everyone Yes, sir. अभी प्रॉब्लम नंबर 2 करके बताओ क्या होगा कैरी फ्लैग क्या होगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा पैरिटी फ्लैग क्या होगा बोलो बोलो जल्दी से इधर में भी कुछ नहीं है 90C + 64 ऐड करना है सर कैरी 1 होगा इस ऑक्सिलरी भी 1 होगा और बोलो पैरिटी भी 1 होगा सर. सभी 1 होगा तो और कोई कुछ ऑक्सिलरी बोलना 0. चाहते हो ऑक्सिलरी रीसेट होगा सर. ऑक्सिलरी 0 होगा और पहले बोलो रिजल्ट कितना आया रिजल्ट कितना 99C + 64 $100. है 100 सर. वेरी वेरी गुड 100 करके दिखाना पड़ेगा 100 कैसे आता है No. अभी बोलो ए CN4 जो ऐड करके कैरी आया था 1. आया था कैरी Yes, sir. तो इसके sir. वजह से ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होगा Yes, sir. इधर कैरी आया है Yes, sir. तो इसकी वजह से ये कैरी फ्लैग सेट होगा ओके अभी रिजल्ट क्या है बोलो Odd 100. 1. सर 0 0. 0 0 रिजल्ट है 0 0 वेरी गुड 0 0 बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 सो हाउ मेनी Yes, sir. वंस 0 1. 0 Even होगा. मतलब इट्स अ इवन नंबर नॉट से ऑड नंबर 0 कभी ऑड नंबर हो ही नहीं सकता तो क्या होगा पैरिटी फ्लैग हमारा रीसेट हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके so carry flag 1 auxiliary carry flag 1 parity flag is 0 because result have a even number of 1 not the odd number of 1 that's why it will be 0 is it clear Yes, it's sir. clear to you Yes, sir. okay so this is the function of already described 128 बाइट रैम रहता है 0027F उसके अंदर 32 बाइट्स रैम रहता है दिस इज इंटरनल रैम स्ट्रक्चर व्हिच आई एम ऑलरेडी डिस्क्राइब
इसको हम लोग बैंक बोलते हैं, बैंक 0 से लेकर बैंक 3 तक, बैंक 0 से लेकर बैंक 3 तक। And next 20 से 2F, you know this location is called bit addressable area, and a total 80 bytes locations from 30 to 7F are user area, normal area, or scratch pad. This is the internal RAM, and after 0 to 7F is called direct and indirect addressing, and 0802 is called SFR area. Total is memory is 64K. This is, you know, we have the 0 to 7F, our internal RAM, then SFR is there. These are the bank with the corresponding locations. These are the ADD means address. ADD means address. I am already explained this one in this diagram. If you can show that, see 00 to 07 is the for bank 0. 002 to 07 is the for bank 0. Bank 1 is for 08 to 0F. Bank 2 is 10 to 17, and bank 3 is 18 to 1F. Is it clear to everyone? Bolo? Yes, sir. So, you know, bank 0, bank 1, bank 2, bank 3, these 4 are the bank with the corresponding, these are the locations, bank 0, bank 1, bank 2, bank 3. Next we will be talking about, these are the bit addressable area. Just see from 20 to 2F, every locations have a 88 bit. I'm already explained it. These are the diagram, right? It is starting from 00. I'm starting over here 00, no issues, and it will be ending at 7F. I'm starting from 00 and it is ending at 7F. So these are the byte address and these are the bit address. Is it clear? सर तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा? ना डायग्राम तो हम बना चुके हैं सर, ये देखो मैंने बनाया था पहले, हमारा कॉपी में देखो। हाँ सर बनाया, लेकिन इसको जो क्लियर से किया हुआ फिर से बनाएंगे या फिर नहीं? ना ना जरूरत नहीं है, यही ठीक है, मैं दे दूंगा, स्लाइड दे दूंगा तुम लोग, करो ना कितना पढ़ना है। These are the total internal RAM structure which I am already explained, and now this is the very important program. Remember these instructions. Remember these instructions, that is move R0, comma has 99H. You can see my screen. You can see this program. Yes, sir. Yes, sir. See what is the function of move R0, 99H. इसका मतलब है after the instructions R0 के अंदर, R0 जो रजिस्टर है उसके अंदर 99H स्टोर करेगा. Is it clear? After the instruction R0 के अंदर 99H स्टोर होगा. Is it clear? Is it clear to you? Yes, sir. So R0 के अंदर 99 स्टोर करेगा, यही इसका फंक्शन है. R0 will be stored 99H. Is it clear? पता कैसे चलेगा सर 99H स्टोर कैसे होगा सर, पता नहीं चल रहा है R0 में. जैसे मान के चलो तुम्हारा वार्डरोब के अंदर कुछ अंदर में रखते नहीं हो, वार्डरोब के अंदर, अलमीरा के अंदर कुछ रखते नहीं हो. यस सर. कैसे रखते हो? अलमीरा का वार्डरोब खोलते हो, उसके बाद रख देते हो. इसके लिए ऐसा तो खोलने का जगह नहीं, इसके लिए ये है इंस्ट्रक्शन. इसी इंस्ट्रक्शन से 99H R0 के अंदर स्टोर होगा. ये हैश के मतलब होता है 99H इमीडिएट डेटा व्हिच विल बी स्टोर्ड इनटू द R0. R0 के अंदर 99H हो जाएगा आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या फंक्शंस होगा सर, एक बार बताओ. सर R1 में 85H स्टोर करेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सर. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सर बोलो.
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है? हाँ? बोलो। R2 में 3F सर। R2 में 3F। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सर? R7 में 63 सर। R7 में 63। और नेक्स्ट R5 में 12। R5 में 12H। Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So next, by default, all the registers क्या होता है सर? मैंने बोला था So all the data stored करा temporary. हाँ बोलो 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 बोलो, समझ में नहीं आया। Sir, data store करता है temporary data. बाय डिफॉल्ट ऑल द रजिस्टर्स में 0 होता है, 0। सिर्फ स्टैक पॉइंटर में 07 होता है। क्यों होता है हम बाद में बताएंगे, बोले थे। मगर स्टैक पॉइंटर छोड़ के बाकी जितना सारा रजिस्टर्स है सारा का सारा में तुम्हारा रहता है, कितना रहता है? 0 रहता है, राइट। सो PSW में कितना रहेगा बाय डिफॉल्ट? 00H। वेरी गुड सर। जो 8 बिट रजिस्टर अभी अभी हम लोग ने देखा है, जिसमें इसमें था CY, जिसमें इसमें था AC, जिसमें इसमें था F0, RS1, RS0, OV-P, ये था ना अभी अभी देखा हम लोग। Yes. तो इसमें 00 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करो 00 को 80, सारा में 0 होगा। इज इट क्लियर और नॉट? 00 को बाइनरी में कन्वर्ट करने से क्या होगा? एक 0 के लिए 4 0 आएगा, 2 0 के लिए 8 0 आएगा। Yes, sir. इस सारा में 0 होगा कि नहीं होगा पहले समझ लो, उसके बाद नहीं तो हमका क्वेश्चन पूछो। बाय डिफॉल्ट हर एक रजिस्टर में 0 होता है, मैंने बोल दिया है, सिर्फ स्टैक पॉइंटर छोड़ के। तो if 0 then all the bits will be 0. Is it clear? Is it clear or not? Yes, sir. समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो भी बोलो। सबको समझ में आया क्यों 0 हुआ है? If PSW is 00 means if we are converting into the binary, what will be the bit? 0 0 0 0 0 0 0 0. So how many 0? 8 0 8 0 put it in the 8 blocks. So all the bits will be 0 by default. इस शुरुआत में ऐसा ही रहेगा, हाँ या ना? Yes. So RS0 and RS1 का वैल्यू क्या है सर? 0 0। 0 0। मतलब कौन सा बैंक सिलेक्शन है? मतलब कौन सा बैंक सिलेक्शन है? बैंक 0। Bank 0. Remember that by default bank 0 is always selected. By default bank 0 is always selected. By default bank 0 is always selected. Is it clear? By default bank 0 is always selected. Is it clear or not? Yes, sir. So by default bank 0 is always selected. This is number 1. By default bank 0 is always selected. अभी एक कौन सा बीट है? This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7. So this bit name is called PSW.3. This bit is the name is called PSW dot how much? 4 sir. 4 sir. Very good. Next, by default एक क्या रहता है? All are 0 0. Remember. So now RS0 and RS1.
both at the beginning condition, both are 0 0. Okay, am I right? Yes, sir. Next, Yes. just see the instructions like set be PSW.4. Which one? PSW.4 means which one? RS0 or RS1? RS1 sir. RS1, very good. अभी मैंने बोला PS0 is PS1 is nothing but a RS1. PSW.4 is nothing but a RS1. Am I right? Yes, sir. So RS1 will become 1. RS0 will becomes 0 because I am not changing anything. So I am changing only set B. Set B means set करना है. उसको set हो जाएगा. आप से आप set हो जाएगा. उसको हमने आप से आप set कर दिया. PSW.4 कर दिया. Set B PSW.4 means this RS1 will be automatically 1. Is it clear? Is it clear to you? Yes, sir. अभी बोलो कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? सर 2 बैंक 2. That's why इधर देखो लिखा है सिलेक्ट बैंक 2. Is it clear? बैंक 2 कैसे सिलेक्ट हुआ पता चला? हाँ या ना में बोलो. Yes, sir. अभी बोलो बैंक 2 कितना मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होता है? From which memory locations bank 2 will be start? कितना मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होता है? 8, sir. 8 से. कितना बोला? 8 से. बैंक 2 नहीं सर मैंने सारा कुछ 10 लिखा दिया. 1 0. 1 0 से सर. एग्जैक्टली. सर देखो मैंने लिखा था बैंक 2 1 0 से. नहीं लिखा था 1 0 से 1 7. Yes sir. So bank 2 is 1 0 to 1 7. Remember this parameter 1 0. So 1 0 for which register? 1 0 for which register? It's a picture देखना पड़ेगा. 1 0 for which register? बोलो. R0. R0. 17 for which register? R7. Very good. This is for R0. This is for R7. So 11 for which register? 11 for which register? R1. Very good. 12 for which register? R2. वेरी गुड. देखो बैंक 2 सिलेक्शंस किया मतलब R0 के अंदर डेटा स्टोर होना, R0 के अंदर 99 स्टोर होना मतलब ही है 10H मेमोरी लोकेशंस में 99H स्टोर होना. एकदम सेम टू सेम बात है क्योंकि बैंक 2 सिलेक्शंस हो रहा है एंड R0 के अंदर मैंने 99H स्टोर कर रहा हूं. आई एम स्टोरिंग द 99H इनटू द R0 मतलब आई एम स्टोरिंग 10H memory locations 99H. I'm written over here just like same RAM location 10H has the value 99H. Is it clear or not? RAM locations 10H has the value 99H. It's clear to everyone. If not, please ask me. R0 के अंदर 99 स्टोर करना और R0 का जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर स्टोर करना बात एक ही हो गया. समझ में आया कि नहीं आया बोलो. No sir. देखो बैंक कौन सा बैंक सिलेक्शन किया? बैंक 2 सर. बैंक 2 सिलेक्शन हो गया. बैंक 2 का मेमोरी लोकेशन किधर से स्टार्ट है? 1 0. किधर में एंड है? 1 7. 1 7. So 1 0 किसका लोकेशन से? R0. तो इधर में प्रोग्राम में मैं R0 के अंदर कितना डाले हैं? कितना स्टोर किया R0 के अंदर? 99. तो R0 के अंदर 99 स्टोर करना मतलब 10H के अंदर 99 स्टोर करना. R0 के अंदर 10 स्टोर करो और 10 के 10H मेमोरी लोकेशंस में 99 स्टोर करो. बात एक ही हो गया ना क्योंकि
if I am shown to you the locations, this is the locations. So R0 का locations कितना था? 10 10, तो 10 के अंदर 99H स्टोर किया. वही बोला मैंने, RAM लोकेशन 99H has the value 10H has the value 99H. अभी R1 मतलब लोकेशंस कितना है? बोलो. R1 मतलब लोकेशन कितना है? 11 सर 11. देखो मैंने इसलिए लिखा RAM लोकेशन 11H has the value 85H. ओके. नेक्स्ट R2 मतलब क्या है सर? 12. 12. So 12H has the value 3FH. Okay. सर R7 मतलब? R7 मतलब कौन सा लोकेशन है? 17. 17. That's why RAM location 17H has the value 63H. R5 मतलब? 15. 15. That's why 15H has the value 12H. Is it clear? Yes, sir. It's clear to everyone? Yes, sir. Next, Yes, I am sir. adding one line in the font of the program. हम एक लाइन ऐड कर रहा हूं, set b psw.3. मतलब बाकी प्रोग्राम सेट सेम है. set b psw.4 move r0 hash 99h move r1 hash 85h move r2 hash 3fh move r7 hash 63h move r5 hash 12h. Okay. Is it clear? Is it clear to all of you? Yes. अभी बोलो क्या होगा? ये जो 5 स्टेटमेंट है वो क्या होगा, तुम लोग बोलो. अभी कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? इन दोनों सेट कर दिया, मतलब क्या होगा? कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? बैंक 0 सर. सेट मतलब क्या होता है? 1 और 0. 1 दोनों 1 1 से बैंक 0 सिलेक्ट होता है. नो सर दोनों 0 से. तो 1 1 होने से कौन सा बैंक सिलेक्शन होता है? बैंक 3. बैंक 3. तो बैंक 3 R0 मतलब लोकेशंस क्या है? 10 10. बैंक 3 का भी 10, बैंक 2 का भी 10. नो सर No, sir, 18 18. सर. हैं? 18 हाँ 18. तो 18 में क्या होगा? बोलो. बोलो. 18 में क्या होगा? बैंक 3. हैं? 18 में बैंक 18 में क्या होगा? बैंक 18 में कौन सा डेटा रहेगा? बोलो. बैंक 3. अरे बैंक 3 तो 18 का है बैंक ही, हमको 3 पता है. मतलब कौन सा डेटा रहेगा इधर? बोलो. R0. R0 में जो वैल्यू है, देखो इधर 10H में 99 स्टोर हो रहा था, अभी 18H में 99 स्टोर होगा. तो तुमको लिखना है ऐसा,
कैसे लिखना है इस प्रोग्राम के लिए? रैम लोकेशंस 18H has the value 99H. Is it clear or not? Is it clear or not? RAM location 18H has the value 99H. Okay? Is it clear or not? बोलो. Yes, sir. नेक्स्ट बोलो R1 के लिए क्या होगा? रैम लोकेशन 19H. वेरी गुड. 19H has the value 85. 85H. 85H. वेरी गुड. नेक्स्ट रैम लोकेशंस फॉर R2 के लिए क्या होगा? 1. RAM locations 1AH has the value 3. 3FH. Very good. Next RAM locations R7 मतलब R7 मतलब क्या है? 1F. 1F. RAM location 1FH has the value कितना? 63H. नेक्स्ट R5 के लिए क्या होगा? RAM locations 1D. 1D 1DH has the value 12H. Okay, is it clear? Is it clear to everyone? Clear to everyone? Yes, sir. सर मान के चलो अभी सेट बी PSW.4 नहीं है प्रोग्राम में, अभी क्या होगा बोलो? सेट बी PSW.4 नहीं है, ओनली सेट बी PSW.3 है, तो क्या होगा? कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा पहले बताओ? कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा? Bank 0. बैंक 0. सेट बी PSW.3 तो है ही, सिर्फ सेट बी PSW.4 नहीं है. Sir, Bank 1. सर बैंक 0 बैंक 1 हर एक ट्राई कर रहे हो क्या? एक्सप्लेन करो हमको. सर बाय डिफॉल्ट दोनों क्या रहता है? RS0 RS1 क्या रहता है? 0, 0, 0. 0 0. वेरी गुड. अभी सेट बी PSW.3 बोला है मैंने. सेट बी PSW.3 मतलब RS0. RS0 क्या हो जाएगा बोलो? बोलो. बैंक 1 सर. ए हो जाएगा 1, RS0 हो जाएगा 1 एंड RS1 को तो हम कुछ किए नहीं, वो 0 ही रह जाएगा, तो हो जाएगा बैंक 1. इट्स क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बोलो. RS0 को मैंने चेंज किया बिकॉज सेट बी PSW.3 मैंने बोला PSW.3 इज नथिंग बट ए क्या बोला मैंने? PSW.3 इज नथिंग बट ए RS0. ओके, तो RS0 को मैंने 1 किया. RS0 को 1 किया मतलब A1 हो गया, मतलब बैंक 1 हो गया सिलेक्शन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट, तो बैंक 1 के लिए ये लोकेशंस क्या क्या होगा सर बताओ? R0 क्या होगा? बोलो. बैंक 1 के लिए कितना होगा लोकेशंस? बैंक 1 के लिए स्टार्टिंग किधर से है?
सर 8 8 08. तो 08 sir. R0 के लिए लोकेशंस क्या होगा 08. 08 so RAM location 08H has the value 99H hello মৌসুমীদি, এক সেকেন্ড, হ্যাঁ বলছি সন্দীপ ঠাকুরের লেটারটা আমি এমনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ আবার একটা এনভেলপ লাগবে, ঠিক আছে নো ইস্যু অসুবিধা হবে না তো? আমি এমনি পাঠাচ্ছি। no 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 কোনো ইস্যু একদম নেই এখানে envelope okay no একদম, issue no issue no issue পাঠা দিয়ে it's clear सबको समझ Yes, में sir. आया कि नहीं आया बोलो R0 is nothing but a 08H is it clear Yes sir. so 08H has the value 99H next R1 what are the locations R1 09. 09. 09H 09H has the value 85H okay next R2 sir 08. 0AH has the value 3FH next R7 sir 0F. 0FH has the value 63H next sir R5 0D. 0DH has the value 12H okay now I am asking you a very intelligent questions listen very carefully and give your answer not listen you just see I am writing the program you also write the program set b psw sorry set b psw.4 जो प्रोग्राम लिखा हुआ है move R0 comma has 99H move R1 comma has 85H okay जो मैंने लिखा है पहले next set b psw.3 move R2 comma has 3FH move R7 comma has 63H move R5 comma has 12H अभी बोलो तो सर क्या होगा सोच के आंसर देना ऐसा हवा हवा में नहीं आई नीड योर आंसर अब मैंने बहुत कुछ समझाया अभी तुम लोग आंसर दोगे एंड एक्सप्लेन भी तुम लोग करोगे हम जो कराएंगे वही तुम बोलोगे यार बाकी सारा नहीं बोलोगे ऐसा करने से तो नहीं होगा ना तुम्हारा क्रिएटिविटी होना चाहिए विदाउट क्रिएटिविटी यू नो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट बोलो सर अरे फर्स्ट जो सर फर्स्ट में PSW4 है उसके लिए बैंक 2 सेलेक्ट करेंगे और PSW3 है उसके लिए बैंक 1 सेलेक्ट करेंगे ना तुम पहले ऐसे करके सोचो हम तुमको क्लू दे रहे हैं RS0 RS1 क्या है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 00. ठीक है इसके बाद सेट भी PSW.4 करने से क्या होगा बोलो 10 होगा वेरी गुड मतलब ए 0 था 0 ही रह जाएगा ए 0 से 1 हो जाएगा एम आई राइट यस सर अभी इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं मूव R0 कमा हैश 99H R0 का मतलब क्या हो गया बैंक ये कौन सा बैंक है बैंक 2 कौन सा मेमोरी लोकेशन से स्टार्टिंग है इसका 10 10 तो क्या लिखेंगे हम
RAM locations. RAM 108 locations NH has 10 has the value 99H. Am I right? Yes, sir. नेक्स्ट सर क्या हुआ है? मूव R1 कोमा 85. तो क्या होगा सर? रैम लोकेशंस 11H हैज द वैल्यू 1 85H होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes. नेक्स्ट अभी क्या होगा? सेट बी PSW.3 मतलब क्या है? सर वो बैंक 1 के लिए होगा. सेट बी PSW.3 मतलब कौन सा बिट 1 होगा पहले बताओ? पहले तो 0 0 में होगा, फिर 0 1 में होगा. 0 में नहीं है अभी जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस है अभी प्रोग्राम चल रहा है, अभी रिसेट से शुरू नहीं हुआ. ये दो प्रोग्राम मैंने नहीं लिखा है, एक ही प्रोग्राम के अंदर है. प्रोग्राम के अंदर कैसे रिसेट हो जाएगा सर? अभी प्रेजेंट स्टेटस ए है, अभी सेट बी PSW.3 करने से क्या होगा बोलो? सर 1 1 हो जाएगा फिर. वेरी वेरी गुड, 1 1 हो जाएगा क्योंकि ए चेंज होगा. ये तो सर जो था वही रह जाएगा, हम तो चेंज नहीं किए सर. समझ में आया कि नहीं आया बोलो? मैंने इसको चेंज किया, सेट बी PSW.3 किया, मैंने इसको चेंज तो नहीं किया, तो 1 था 1 ही रह जाएगा. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा सर अभी? Bank 3. बैंक 3. वेरी गुड. Bank. तो नेक्स्ट मूव R2, 3F मतलब रैम लोकेशंस क्या होगा? सर बैंक 3 में है तो 1 8 होगा. 1 1 8 से शुरू होगा, मतलब कि R2 में जाएगा तो 1 B होगा. अब 1 8 के बाद क्या होता है? अभी तो किया ही है. 19 1 8 के बाद 1 9 मतलब 2 0. 2 0 होता है 1 9 के बाद. अभी तो किए रे बाबा. 1 A सर. 1A 1AH has the value 3FH. Next sir, RAM locations R7 के लिए क्या होगा सर? 1F 1F8 1F. has the value 63H. And next RAM locations 1D. 1DH has the value 12H. It's clear to all of you? क्यों एक ही जगह में एक ही प्रोग्राम में देखो दो बैंक को लेकर हम काम कर रहे हैं, एक ही जगह में दो बैंक को लेकर हम काम कर रहे हैं. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. तुमको ऐसे करके ही सोचना पड़ेगा प्रोग्राम लिखने का टाइम, जो और कैसे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं. देखो मैंने जब इसको सेट भी PSW.3 किया, उसके बाद ही बिट को चेंज किया, उसके पहले तक तो यही रहने दिया. जब चेंज हो गया तो बैंक भी चेंज हो गया. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. हम कोई बैंक सिलेक्शंस नहीं किया, सेट बी PSW.44 कुछ नहीं किया था. कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा बाय डिफॉल्ट? 0 मैं 0. सेट बिट किया ही नहीं. कौन सा बैंक सिलेक्शन होगा बाय डिफॉल्ट? क्या रहता है? बैंक 0 सर. बैंक बैंक 0 सिलेक्शन रहेगा, याद रखना, क्योंकि स्टैक पॉइंटर वैल्यू 07Q इसके ऊपर डिपेंड करेगा. बाय डिफॉल्ट बैंक स्टैक पॉइंटर का वैल्यू 07Q, ये डिपेंड करेगा कौन सा बैंक बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है उसके ऊपर, हम बताएंगे बाद में. इट्स क्लियर एवरीवन? Yes. So I am proceeding. Special function registers, those are I already described you.
So no matter of, wasted of time. This is the stack pointer. It's a very important one. Next, why the stack pointer value is 07H? फर्स्ट तुमको स्टैक पॉइंटर के बारे में समझना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर का फंक्शंस क्या है। मैंने स्टैक पॉइंटर के साथ किसका कंपैरिजन करवाया था, एक एग्जांपल दिए थे, याद है? बोलो, याद है कि नहीं? साइकिल गैरेज, याद है कि नहीं? Yes, sir. यस सर, जो सबसे आगे जाएगा वो पीछे आएगा, जो पीछे आएगा वो आगे आएगा। वेरी गुड। तो ये Last- स्टैक पॉइंटर का फंक्शंस कैसे होता है? अभी स्टैक पॉइंटर में क्या है, 07H है। हम लोग पुश करके डेटा स्टैक में घुसा सकते हैं, पुश, राइट? पुश करके मान के चलो मैंने 30 दिया, तो 30H मेमोरी लोकेशंस का जो कंटेंट है वो स्टैक में जाएगा। कैसे जाएगा? बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टैक, फर्स्ट क्या होगा, स्टैक इज इक्वल टू SP+1। कोई डेटा घुसाने से पहले स्टैक को पहले एक बढ़ाएगा, एक इंक्रीज करेगा, राइट? मतलब साइकिल गैरेज में जब था, जो साइकिल लास्ट में रखे हैं, जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो एक बढ़ा के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में ना रखेगा, नेक्स्ट जगह में ना रखेगा, ना उसी जगह में रख देगा जो पुराना में था। तो पहले क्या करेगा, स्टैक को एक बढ़ाएगा। तो 07 से क्या हो जाएगा, वो एक बढ़ाने से, बोलो 07+1 करने से क्या होगा, बोलो? स्टैक पॉइंटर एक बढ़ेगा तो 07 से हो जाएगा 08। ओके, दिस 08H मेमोरी लोकेशंस will be stored the 30H मेमोरी लोकेशंस कंटेंट। 30H मेमोरी लोकेशंस में जो था वो स्टैक में आ जाएगा। मतलब स्टैक में हम लोग डेटा स्टोर कर सकता है क्योंकि हमारा फ्यूचर यूज के लिए, जब मान के चलो रजिस्टर खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए हम लोग स्टैक को यूज करता है टू वैकेंट द रजिस्टर, टू वैकेंट द रजिस्टर। मान के चलो स्टैक का फंक्शंस और एक बोले तो तुमको समझ में आएगा। तुम्हारा एक बैग्स है, जब तुम इसमें हर एक दिन बुक्स लेकर आते हो कॉलेज में। अभी मान के चलो तुमको घूमने जाना है और छोटा बैग ही चाहिए, तो क्या करोगे, बुक को बाहर में कोई जगह में रख के वही बैग को तुम लेकर घूमने चले जाओगे। अब फिर वापस जब आओगे घूम के, तब कॉलेज में आने के टाइम फिर वो जो सामान था उसको छोड़ के फिर बुक्स को तुम रख सकते हो। am I right? ऐसे तो हम लोग करते ही है ना, नहीं करते? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हमारा मान के चलो एक कंधे वाला बैग है, उस कंधे में बैग में हमारा बुक्स लेकर जाते हैं। अभी वही बुक्स मान के चलो हमारा कोई दूसरा काम में हमारा बैग को चाहिए, तो वो हमारा बैग में जो कंटेंट है उसको हम लोग बाहर में रख के हम लोग लेकर जाता है, उसी बैग को सामान घुसा के। अब जब घूम के आता है, तब जब घूम के आता है तो उसी बैग को हम लोग यूज करते हैं दूसरे पर्पस से। am I right? Yes, sir. So basically that's why stack pointer is increased by 1. Just see, whenever we have a stack pointer, it will be 07 before increment
placed on the stack pointer is increment before storing the data on the stack. Okay. And when is retrieve and जब उस stack से data निकलेगा तब ये subtract होगा. पहले data को निकाल लेगा उसके बाद subtract होगा. Push, pop, call and return instructions में stack use हो सकता है. Okay. Next, microcontroller design. It's a another biggest chapter, the memory interfacing kind of things. So it will be discussed tomorrow. Tomorrow I have the class, no? Yes, sir.